اکثر لوگ کہتے ہیں آپ 25 دسمبر کو کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ میرے عزیزو، ہم 25 تاریخ نہیں مناتے، ہم یسوع کی پیدائش کو مناتے ہیں. ہمارے لیے تاریخ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے یسوع کی پیدائش اہم ہے. ہاللیلویا. تو ہم تاریخ نہیں مناتے، ہم یسوع کی پیدائش کو مناتے ہیں، ہم یسوع کی سالگرہ کو مناتے ہیں، ہم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کو مناتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ہیرودیس نے مسیح یسوع کو مارنا چاہا، لیکن کلام مقدس کے اندر لکھا ہے وہ مار نہ پایا. اب یہ ہیرودیس ہے کون؟ یہ ہے کون؟ کلام مقدس کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہیرودیس بادشاہ 4 BC سے 37 BC تک ایک پاورفل پولیٹیکل لیڈر تھا، ایک سیاسی رہنما تھا، ایک سیاسی لیڈر تھا. 4 BC سے لے کر 37 BC تک، بیفور کرائسٹ سے. اس نے بڑے بڑے شہروں کو تعمیر کیا اور یہ بہت ظالم قسم کا بادشاہ تھا. ایون اس بادشاہ نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا. ہیرودیس بادشاہ نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا. اور اس ظالم بادشاہ نے ایون اس کے 2 بیٹے تھے، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا کیونکہ وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے. ہاللیلویا. اور ایون اس ہیرودیس بادشاہ نے جو کوئی بھی لیڈر اس سے آگے جانے کی کوشش کرتا تھا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، ایون اس نے بہت سارے لیڈرز کو بھی قتل کروا دیا جو اس سے آگے بادشاہ بننا چاہتے تھے. لیڈر یہ اس قسم کا ظالم بادشاہ تھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیسر اگستن کہتا ہے ہیرودیس بادشاہ کا بیٹا بننے سے بہتر ہے کہ سور بن جاؤ. کیا کہہ رہا ہے؟ ہیرودیس بادشاہ کا بیٹا بننے سے بہتر ہے کہ سور بن جاؤ، کیونکہ یہ بیٹوں کو مار دے گا، سور کو نہیں مارے گا. اتنا ظالم بادشاہ تھا یہ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس کی بیوی کا نام مریم تھا. اس کی بیوی کا نام مریم. اس نے اپنی بیوی کو مار دیا، اس نے اپنے بچوں کو مار دیا، اس نے اپنے اس وقت کے بہت سارے لیڈرز کو مار دیا کہ کوئی اس کی جگہ بادشاہ نہ بن جائے، کوئی اس سے آگے نہ نکل جائے. یہ بادشاہ تو تھا، اس میں بہت زیادہ جیلسی تھی. جب آپ جیلسی کا شکار ہوتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی میری جگہ نہ لے لے. اسی لیے یہ کرسمس کا بھی مخالف تھا. جب آپ کیا ہوتے ہیں، جو لوگ جیلسی کے اندر آ جاتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو ختم کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، پلان کرتے ہیں. آپ کا مقابلہ تو کر نہیں پائیں گے، لیکن کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پھر آپ کو ختم کرنے کا منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ جیلسی سے بھرا ہوا تھا، یہ لوگوں کو ختم کر رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ لوگوں سے جیلس تھا کہ یہ کوئی میرے سے آگے نہ. اس لیے یہ کرسمس کا کیا تھا؟ مخالف تھا. ہاللیلویا. ہیرودیس بادشاہ ڈرتا تھا. پتہ کن چیزوں سے ڈرتا تھا؟ متی 2 باب اس کی پہلی آیت سے نکالیں، دوسرے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہتے ہیں میں تے اپنے بچے نہیں چھڑے، میں اپنی بیوی نہیں چھڑی، میں تے لیڈرز نو مارتا. اے کیڑا بادشاہ وجہ پیدا ہو؟ کیونکہ ہیرودیس نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی جگہ پر کیا بنے؟ بادشاہ بنے. ہاللیلویا. آپ دنیا میں ناکام آدمی ہیں اگر آپ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑ سکتے، اگر آپ اپنی پوزیشن کسی کو دے نہیں سکتے، آپ دنیا میں ناکام شخص ہیں. ہاللیلویا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں ہی آگے رہوں، میری ہی صرف آنر ہو، میری صرف عزت ہو. ہاللیلویا. اگر آپ گھٹنا نہیں جانتے، آپ بڑھنا بھی نہیں جانتے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو ہم نے بچپن میں یہ ڈرامے دیکھے تھے. بچپن میں ایک ہیرودیس بنتا تھا ایک بچہ، تو بچہ تو کہتا جب وہ آتے تھے مجوسی، کیا کہتا تھا؟ کون سا بادشاہ، کیسا بادشاہ. ہاللیلویا. کتنے لوگوں نے سنا؟ کیا کہتے تھے؟ کون سا بادشاہ، کیسا بادشاہ. ہاللیلویا. اب سمجھ میں آئی. مجوسی آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور یہ کہتا ہے میں تو کبھی کسی کو آگے نہیں آنے دیا، یہ کہاں سے بادشاہ آ گیا. ہاللیلویا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کون سا بادشاہ، کہاں کا بادشاہ؟ وہ میں نے تو کسی کو آگے نہیں آنے دیا.
ये कौन सा बादशाह पैदा हुआ है? मैंने तो अपने बच्चे मार दिए, बीवी को मार दिया, लीडर्स को मार दिया, ये कहां से बादशाह पैदा हो गया? हालेलुया। अब इसको डर क्या था? अब हेरोदिस को डर था, पहला इसका डर क्या था? इसको डर था कि यस्सु इसका तख्त ले लेगा। पहला डर क्या इसका? यीशु इसका तख्त ले लेगा। आवाज नहीं आ रही। पहला डर क्या है हेरोदिस का? यीशु इसका तख्त ले लेगा। अब हेरोदिस का पहला डर क्या था? कि यस्सु मेरा तख्त ले लेगा। ये है हेरोदिस का पहला डर। कितने लोग आपने देखे होंगे जो अपनी पोजीशन खो देने से डरते हैं? कोई मेरी पोजीशन ना ले ले, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। हालेलुया। आप अगर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, खुदा आपको बड़ी पोजीशन पर नहीं लेके जाएगा। अगर आप उसी छोटी पोजीशन पे बैठे रहेंगे, खुदा कभी भी आपको बड़ी पोजीशन। कुछ लोग हैं जिनको खुदा ने जिंदगी में पहली पोजीशन दी है, एक जगह दी है, और वो ही छोड़ना नहीं चाहते। खुदा उनको कैसे सरबुलंद करे? सेम इसी तरह से अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, खुदा आपको बड़ी पोजीशन नहीं देगा। अब ये डर रहा है कि मेरा तख्त ना छीन जाए, मेरा तख्त ना चला जाए, ये मेरी सल्तनत ना खत्म हो जाए। तो ये समझ रहा है जो पैदा हुआ है वो बादशाह है। उसको नहीं पता जो पैदा हुआ है अब तेरी सल्तनत जाएगी, क्योंकि पैदा होने वाला बादशाह नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया। तख्त तो जाएगा तेरा। हालेलुया। सेकंड इसको डर था कि इसकी पावर चली जाएगी। पहला क्या था? मेरा तख्त चला जाएगा। सेकंड क्या थी? मेरी आवाज नहीं आ रही। क्या चली जाएगी? पावर चली जाएगी। कितने लोगों ने आज लोगों को देखा जिनको पावर का नशा? जितने जितने बड़े अमीर लोग हैं, पैसा है उनके पास, बड़े बड़े लीडर्स आपने देखे होंगे जिनको पावर का नशा। वो सियासत में पता है इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे कमाने हैं, सियासत में वो इसलिए है क्योंकि पावर का नशा है। वो पावर क्यों लेते हैं? लोगों को डराने के लिए। वो पावर का उनको नशा क्या है? लोग मेरे डर के अंदर रहें, लोगों पे हुक्मरानी करूं, लोग मेरी ऑनर करें, लोग मेरी इज्जत करें, इसलिए उनको ताकत का नशा है। वो 1000 लोगों को भी मार देते हैं, परवाह नहीं करते। हालेलुया। और तीसरा इसको डर ये था कि मेरी बादशाहत चली जाएगी। मेरी कुछ लोग ऐसे हैं जो ताकत से ज्यादा प्यार करते हैं और सच्चाई से कम प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ से ज्यादा प्यार करते हैं, सच्चाई से कम प्यार करते हैं। कुछ लोगों को यह भी पता है कि अगर आप बुतों के सामने, किसी बुत के सामने मोमबत्ती जलाएंगे, वो आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन ये फिर भी उस झूठ के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि झूठ के साथ सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। हालेलुया। और इसको ये भी डर है कि अगर मैं सच्चाई को कबूल ना कर लूं, हेरोदिस को क्या डर है? कि मैं सच्चाई को कबूल। ये बादशाह बनना चाहता है लेकिन बादशाह को सजदा करना नहीं चाहता। हालेलुया। ये बादशाह बनना और रहना चाहता है लेकिन किसी दूसरे बादशाह को सजदा करना। हालेलुया। ये हेरोड स्पिरिट आज भी मसीह के मुखालफत में काम करती है। आज भी ये स्पिरिट लोगों के अंदर है और आज भी क्रिसमस की मुखालफत हो रही है। आज भी कलाम की कलाम में कहां लिखा है, किस जगह लिखा है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी उसकी खुदा होने पे क्वेश्चन रेज करते हैं, उसकी अथॉरिटी के नीचे नहीं आना चाहते। और तीसरी चीज, मत्ती की इंजील उसकी 8 को पढ़ेंगे। अब ये बहाना लगा रहा है मैं उसकी प्रस्तिश करना चाहता हूं, मैं उसकी इबादत करना चाहता हूं। क्या बहाना लगा रहा है? मैं उसकी क्या करना चाहता हूं? ये बहाना लगा रहा है। और ये कहकर इन्हें बैतलहम को भेजा, और ये कहकर उनको बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक-ठीक दरियाफ्त करो। उस बच्चे की बाबत ठीक-ठीक दरियाफ्त करो। और जब वो मिले तो मुझे खबर दो। तो जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। कि मैं भी आकर उसे क्या करूं? सजदा करूं। कि सजदा करना चाहता है। नहीं, ये अब बहाना लगा रहा है कि मैं इबादत करना चाहता हूं, लेकिन असल में ये इबादत करना नहीं चाहता था, ये यस्सु को कत्ल करना चाहता था। हालेलुया। इसने क्या किया? सरदार काहिनों को, उस वक्त के सरदार लोगों को बुलाया, सरदार काहिनों को बुलाया, बड़े बड़े मजहबी लीडर्स को बुलाया। बड़ा सियाना था, कहता किताबें खोले, देखें कब यस्सु पैदा होने वाला, किस जगह पैदा होने वाला है। सबको जमा कर रहा है कि यस्सु के बारे में इसको इल्म था, ये नॉलेज था कि यस्सु कहां पैदा होगा, कैसा, किस जगह पर पैदा होगा, मुझे बताओ उसके बारे में। हालेलुया। आज भी इब्लीस मजहबी लोगों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। रूहानी लोग उसके हाथ नहीं आते, मजहबी लोग उसके हाथ आ जाते हैं। पता केड़े मजहबी लोग? जिन्होंने 40 रोजे तो रख लेने लेकिन सारा साल चर्च नजर नहीं आना। हालेलुया। 40 रोजे रखेंगे, आपको नजर आएंगे,
लेकिन सारा साल चर्च नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। 24 घंटे वो अच्छे कपड़े पहने तो आपको नजर आएंगे, लेकिन अंदर से उनके दिल आपको गंदे नजर आएंगे। हालेलुया। आज भी बड़े सारे लोग हैं जो बहाने लगाते हैं कि हम यस्सु को सजदा करना चाहते हैं, लेकिन असल में वो यस्सु ही की मुखालफत करते हैं, यस्सु की खिदमत की ही मुखालफत करते हैं। बहुत सारे लोग इस स्पिरिट से पोजेस हैं। अब इसका मंसूबा हम पढ़ेंगे, इसका रियल मंसूबा क्या था वो पढ़ेंगे। 16 आयत को पढ़ेंगे, दूसरे बाब की 16 आयत। जब हेरोदीस ने देखा क्या हो गया, नहायत गुस्से हो गया। ओके, अब इतना गुस्से में आ गया कि मेरे साथ इन्होंने मजाक किया है, इन्होंने मेरे साथ हंसी की है। अब वो गुस्से में आकर क्या कर रहा है कि उसने अपने इर्द गिर्द के इलाके के अंदर, उस इलाके के अंदर जितने भी बच्चे, जिनकी उम्र कितनी थी, 2 साल या उससे कितने साल के, 2 साल या उससे 2 साल या उससे। अब इस बंदे ने, जिसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, जिसने अपने बेटों को मार दिया, उसके लिए बच्चों को कत्ल करवाना मुश्किल था, क्योंकि ये एक जालिम बादशाह था। हालेलुया। अब ये खुदा के मंसूबे को पूरा करना चाहता था, ये खुदा के मंसूबे को बर्बाद करना चाहता था। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग क्रिसमस का केक तो काट रहे हैं, लेकिन अंदर से मसीह के दुश्मन है, अंदर से मसीह के मुखालफत में है, वो मसीह से प्यार नहीं करते। हालेलुया। इसने बच्चों को कत्ल किया, अब यस्सु को कत्ल करने के लिए बच्चों को भी मार रहा है, लोगों को कत्ल कर रहा है। वजह क्या है? किसको मारने के लिए? यस्सु को मारने के लिए, खुदा का मंसूबा खत्म करने के लिए। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ये 2 साल के बच्चे से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? ये बादशाह है, लेकिन लड़ किससे रहा है? एक बच्चे से। किससे लड़ रहा है? किससे लड़ रहा है? ये बादशाह बच्चे से लड़ रहा है, लेकिन इसको नहीं पता तू बच्चे से नहीं, तू जिंदा खुदा से खुद लड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसको लग रहा है कि एक बच्चा पैदा हुआ है और ये उससे लड़ रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता ये खुदा से लड़ रहा है, ये उस नबूवत से लड़ रहा है जो नबियों ने यस्सु के बारे में की है। ये उसको नहीं पता ये उस विजन के खिलाफ लड़ रहा है, ये निजात से लड़ रहा है, जो निजात खुदावंद इस दुनिया को देने वाला था, ये उस निजात से लड़ रहा है, ये खुदा के मंसूबे से लड़ रहा है, और ये बच्चे से नहीं बल्कि खुदा से लड़ रहा है। हालेलुया। मेरे चीजों, इसी तरह से अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई कॉलिंग रखी है, खुदा ने अगर आपको कोई खिदमत दी है, और लोग जब आपसे लड़ रहे हैं, कोई दुश्मन आपसे लड़ रहा है, तो उसको समझ लग रहा है कि वो एक बच्चे से लड़ रहा है, वो आपसे लड़ रहा है, वो आपसे नहीं लड़ रहा, वो आपके खुदा से लड़ रहा है, उस नबूवत से लड़ रहा है, उस कॉलिंग से लड़ रहा है जो खुदा ने आपको दी है। हालेलुया। उस बुलाहट से लड़ रहा है जो खुदा ने आपको दी है। हालेलुया। तो खुदा ने हेरोदेस को कैसे जवाब दिया? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा ने मजूसियों को क्या कहा कि तुमने वो रास्ता नहीं लेना, बल्कि दूसरे रास्ते से चले जाओ, वापस हेरोदेस के पास नहीं जाना। मेरे अजीजों, हेरोदेस बादशाह जुल्म में तो बढ़ के हो सकता है, लेकिन पावर में बढ़ के नहीं हो सकता। पावर एब्सोल्यूट मेरे जिंदा खुदा की है। हालेलुया। दूसरा पैगाम किसको मिला? पहला पैगाम तो मजूसियों को मिला, लेकिन दूसरा पैगाम क्रिसमस का पता, दूसरा पैगाम फरिश्तों ने किसको दिया? जब वो रवाना हो गए, जब वो रवाना हो गए, तो देखो खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर, उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा। कहाँ भाग जा? मिस्र को। कहाँ भाग जा? मिस्र। ओके। और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ, जब तक कि मैं, जिंदा खुदा कह रहा है, जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, वहीं तू रहना। क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है, ताकि इसे हलाक करे, ताकि इसको क्या करे? हलाक करे। खुदा ने मजूसियों को आगाह किया, फिर खुदा ने यूसुफ को आगाह किया। हमने मुकद्दसा मरियम का रोल बाइबल के अंदर पढ़ा, वो खुदा की माँ है और उनका रोल बहुत अहम है, लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर यूसुफ का रोल भी बहुत अहम है। हालेलुया। वो इस्राएल के अंदर है और खुदा का फरिश्ता आके कह रहा है कि बच्चे को यहां से ले और कहां चला जा? मिस्र में चला जा। कहां चला जा? अब फरिश्ता कह रहा है बच्चे को ले और मिस्र में चला जा। आपको पता है इस्राएल और मिस्र का फासला कितना है?
750 किलोमीटर। कितने? अब फरिश्ते ने उसको कहा अपनी बीवी और बच्चे को ले और मिस्र में चला जा। अब यूसुफ रात के वक्त उठा और अपनी बीवी को गधे पर बिठाया, अपने बच्चे को गधे पर बिठाया और 750 किलोमीटर पैदल सफर कर रहा है यस्सु की जान बचाने के लिए और मुकद्दसा मरियम की जान बचाने के लिए। इसलिए यूसुफ का रोल बहुत अहम है। हालेलुया। पैदल सफर कर रहा है 750 किलोमीटर। हालेलुया। सो यूसुफ ने बहुत मेहनत की है यस्सु और मुकद्दसा मरियम को बचाने में। यूसुफ का रोल बहुत अहम है। तकरीबन 2 साल उसने उनको वहां पर रखा है। और फिर जब खुदा का फरिश्ता आया, उसने कहा कि हेरोदिस मर गया, वापस चला जा। तो कलाम मुकद्दस के अंदर फिर वो बच्चे को मुकद्दसा मरियम को लेकर कहां चला गया? इसराइल के अंदर चला गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हेरोदिस सब कुछ करने के बावजूद यस्सु के मिशन को रोक नहीं सका, तो आपका दुश्मन भी सब कुछ करने के बावजूद जो मिशन खुदा ने आपको दिया आपको रोक नहीं सकता यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? उसने कहा मैं गालिब आया, तुम भी गालिब आओगे। अगर यीशु को दुश्मन रोक नहीं सका, अगर हेरोदिस यीशु को रोक नहीं सकता, क्या आपको दुश्मन रोक सकता है? जो मिशन खुदा ने आपको दिया है, जो खिदमत खुदा ने आपको दी है, जो बरकत खुदा ने आपको दी है, कोई भी दुश्मन आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, हेरोदिस मर चुका है। दुश्मन था लेकिन हेरोदिस मर चुका है, लेकिन यीशु आज भी जिंदा है। मेरे अजीजों, हेरोदिस का तख्त खत्म हो चुका है, लेकिन आपके और मेरे यीशु की बादशाहत अब्दुल्लाबाद कायम है। हालेलुया। हेरोदिस की पावर खत्म हो चुकी है, लेकिन यीशु की पावर आज भी आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हेरोदिस के पास सब कुछ था। हुकूमत थी, फौज थी, पुलिस थी, पैसा था, प्लानिंग थी। आपको पता है यीशु जो चरनी में पैदा हुआ उसके पास क्या था? यीशु के पास चरनी थी, खुदा था, नबूवत थी, निजात थी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए अपने दुश्मनों से ना डरे। जो लोग अक्सर रोते रहते हैं, मजबूत बने। अगर दुश्मन यीशु को नहीं रोक पाया, दुश्मन आपको भी रोक नहीं पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और बादशाह हमेशा हमेशा यीशु ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। हेरोदिस बच्चे से लड़ रहा था। किसे लड़ रहा था? खुदा से लड़ रहा था। तो जो लोग आपको बच्चा समझकर आपसे फाइट कर रहे हैं, आपसे जंग कर रहे हैं, उसको नहीं पता कि ये बच्चा नहीं है, तू बच्चे से नहीं बल्कि खुदा से फाइट कर रहा है। बहुत सारे लोग खिदमत में लोगों से फाइट कर रहे हैं। आपको पता है बड़े सारे लोग भी बर्बाद है वो लोगों से जिसको खुदा ने बुलाया, जिसको खुदा ने कॉलिंग दी है, जिसको खुदा ने बुलाहट दी है। अगर आप उससे फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब किससे फाइट कर रहे हैं? आप डायरेक्ट खुदा से फाइट कर रहे हैं। आप उस नबूवत से फाइट कर रहे हैं जो खुदा ने उसके लिए रिलीज किया। आप उससे फाइट कर रहे हैं जो विजन खुदा ने उसके लिए रखा है, जो कॉलिंग खुदा ने उसके लिए रखी है। हालेलुया। जिसका मतलब क्या है? जब आप फाइट कर रहे हैं किसी बच्चे से, वो बच्चा नहीं है, आप डायरेक्ट खुदा से फाइट कर रहे हैं। आप किसी खादम से फाइट कर रहे हैं, आप उससे नहीं, आप डायरेक्ट खुदा से फाइट कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप आज के बाद अगर आपको खुदा ने बुलाया है, अगर आपने कोई भी खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, आपको कोई भी खुदा ने खिदमत दी है, आप कोई भी खुदा के जलाल के लिए आप इस्तेमाल हो रहे हैं और लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं, डोंट वरी, वो आपसे नहीं लड़ रहे। किससे लड़ रहे हैं? खुदा से लड़ रहे हैं। हालेलुया। हेरोदिस मर चुका है, लेकिन आपका मेरा मसीहा आज भी जिंदा है। हालेलुया।